A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters, basically the numerical questions and some chapters of the macroeconomics in which many of the students have been facing the problem. So in previous classes, two or three classes, we were explaining or understanding, studying the chapter that is foreign exchange rate. Okay. So in the foreign exchange rate, we have already discussed what is the meaning of the foreign exchange rate. Okay. So what is the foreign exchange? What is the meaning of the foreign exchange rate? What are the different types of the foreign exchange rate? In which we have discussed the fixed exchange rate system, flexible or floating, flexible or floating exchange rate system and managed floating exchange rate system. Okay, so we have already discussed all these types of the exchange rate system, that is types of the types. Okay, so in which we have already discussed the fixed exchange rate system, flexible or the floating exchange rate system and managed floating exchange rate system. So in the fixed exchange rate system we have discussed about the rate is determined by the government. Okay. So whatever the rate, $1 equal to 70, $1 equal to 80, it is determined by the government. Okay. So it is of two types. Fixed exchange rate system of two types. First one is gold standard and the second one is Bretton Woods system. Okay. So priorly there was operating a gold standard system in which all the currencies should be converted into the gold. Okay. Before the transaction of the goods and services, first of all the currencies should be converted into the gold, and after that any country are able to do any kind of business. And second one is Bretton Woods system. So in the Bretton Woods system all the currencies are, first of all it is converted into the US dollar, and after that US dollar is converted into the gold. Okay. So when we talk about the Bretton Woods system, so it was done by introduced by the IMF, International Monetary Fund. Okay, the headquarters of the IMF is Washington DC. So it was done in the 1944. Okay, so Bretton Woods system. So basically the main motive or the main work of the Bretton Woods system is first of all the currencies of the countries are converted into the US dollar, and after that it is converted into the gold. Okay, so it is the fixed exchange rate system. So next one is flexible or the floating exchange rate system. In the flexible or the floating exchange rate system, the exchange rate, the foreign currency is determined by the market forces. So whatever the demand of the foreign exchange and whatever the supply of the foreign exchange, so it is determined at that place where the demand and the supply intersect each other. That situation, the equilibrium point is determined, and that situation the managed or floating exchange rate is determined. So basically the floating exchange rate system is determined by the market forces. That is demand and supply. Demand and
So this is flexible. Next one is managed floating exchange rate system. So in the managed floating exchange rate system, so it is said that it is a combination of the both, that is flexible and the fixed and the flexible. So इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको combination बोलते हैं fixed और flexible exchange rate का, because इसमें क्या होता है, दोनों का intervention होता है. Both fixed as well as flexible both intervene in the determining of the exchange rate. So first of all has been done by the market forces. If all the things is not under the control by the flexible, and then there is intervention of the government. Okay, so in the government it is done by the central bank of any country. So in India, Reserve Bank of India is determining the rate, exchange rate. Okay, so it is all we have already discussed in the previous class. Next topic, we have started the causes for the change in the exchange rates. Okay, so what are the causes for the change in the exchange? So it is basically done by the change in the demand and supply of the foreign exchange. So whatever the demand and whatever the supply of the foreign exchange, that's why there is changes occurs in the exchange rate system. So in this we have to study the two types. First one is currency depreciation and currency appreciation. Okay, so in the currency depreciation, exchange rate rises and in the currency appreciation, exchange rate falls. Exchange rate falls. Okay, so currency depreciation means when there is fall in the value of the domestic currency in terms of the foreign currency, means the value of the domestic currency is falling with respect to the foreign country. Okay, so in the currency depreciation, first of all, if $1 equal to rupees 60, now if the currency depreciate, now we have to pay $1 for rupees 70. ओके, पहले हम लोग को क्या करना पड़ा था कि $1 60 रुपीज पे करना पड़ा था. अब $1 के गुड्स पे हमें 70 रुपीज पे करना पड़ा है. दैट मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज हो रहा है मनी का, वो रेट क्या हो गई है, राइज हो गई है. पहले 60 रुपीज था, वो 70 हो गया. ठीक है, इसके पीछे कॉजेस क्या है? अब ये करेंसी जो डेप्रिशिएट हो रही है, इसके पीछे भी कॉज है. इसके पीछे कॉज ये है कि इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई. दैट मीन्स कि जो डिमांड है वो एक्सचेंज फॉरेन करेंसी की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. और वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी सप्लाई की, तो वो क्या कर गई है, फॉल कर गई. ठीक है, तो जैसे इंक्रीज इन डिमांड, सो द व्हेन वी पुट ऑल दिस थिंग ऑन द डायग्राम, सो द कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड. ओके, curve will shift to the rightward and the exchange rate is increased from OR to OR1. We have already discussed all these things in the previous class. So these all are the some causes for the depreciation of the domestic currency. Next is what will impact on the foreign trade of the depreciation of the domestic currency. अगर currency का depreciation हो रहा है, उस condition पे जब हम बात करते हैं कि foreign trade पे impact क्या होता है. Foreign trade means import and export. So export become cheaper and export is for the US. Export encouraged and the import will discourage. Okay? तो अगर हम depreciation में बात करते हैं तो export क्या होता है, वो encourage होता है, और import क्या होता है, वो discourage हो जाता है. ठीक है, next है आपका currency appreciation. Currency appreciation होने का मतलब हो जाता है कि एक्सचेंज रेट फॉल्स हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्सचेंजिंग आवर मनी, $1 इक्वल टू 60 रुपीज,
नाउ वी हैव टू पे ओनली 50 रुपीज। अब हमें अपने गुड्स का क्या है, कम रुपीज देना पड़ रहा है, मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो जा रही है, वो फॉल कर जा रही है। पहले $1 इक्वल टू 60 रुपीज देना था, अब $1 इक्वल टू 50 रुपीज देना है। तो एक्सचेंज रेट क्या कर जा रही है, फॉल कर जा रही है। अब करेंसी एप्रिशिएट जो हो रही है, उसके पीछे उसका कॉज क्या है, क्यों करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। इसका 2 मेन कॉजेज है, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, सप्लाई क्या हो जा रही है, इसकी ज्यादा हो जा रही है। तो ड्यू टू दैट द करेंसी एप्रिशिएट। तो when we explain or define the appreciation of the domestic currency, so there is rise in the value of the domestic currency in terms of the foreign currency. Okay, so when we talk about the appreciation of domestic currency, impact of appreciation of the domestic currency on the foreign trade, so it becomes the export become the export discourage and the import will encourage. Okay, so all these things we have already discussed in the previous class. Next topic that we are going to study is the causes or the reason for the rise or fall in demand and supply of the foreign currency. So what are the different reasons and what are the different causes for rise and fall in the डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दी फॉरेन करेंसी। कि जो भी फॉरेन करेंसी है उनके वो फॉल कर रहे हैं, वो राइज कर रहे हैं, उसके पीछे कॉज और रीजन क्या है। तो ये टॉपिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो टॉपिक है आपका कॉजेस और द रीजन। कॉजेस or reason for rise and fall in demand and supply of foreign currency। ठीक है, तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे रीजन एंड कॉजेस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। जो हम ये बात कर रहे थे कि करेंसी क्या हो रही है, डिमांड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन में, तो उसके पीछे क्या कॉज है, उसके पीछे भी तो कुछ कॉज होगा ना जिसकी वजह से ये इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे राइज इन डिमांड। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी राइजेस। जब डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो राइज कर रही है बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। कि जो करेंसी है वो क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। फॉल इन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की प्राइस फॉल कर रही है। एप्रिसिएशन of the domestic currency means an increase in the value of the domestic currency in terms of the foreign currency। ठीक है, एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का क्या मतलब होता है कि जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या करिए, फॉल करिए इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो फॉर एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम द ₹60 to ₹50। ठीक है, तो जैसे $1 पहले हम लोग 60 रुपीज दे रहे थे, अब क्या है $1 50 रुपीज दे रहे हैं। ठीक, सो देयरफॉर डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी राइज। डिमांड क्या हो रही है, वो फॉरेन करेंसी की राइज हो रही है। बिकॉज क्यों हो रही है, तो पहला दे रहा है कि व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल, जैसे ही जो प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, फॉरेन करेंसी की फॉल हो रही है, इट्स डिमांड राइजेस। इसकी डिमांड क्या हो जा रही है, वो राइज कर जा रही है फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस। स्पेकुलेटिव पर्पस मीन्स कि लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशंस के लिए, मतलब अगर प्राइस उसकी कम होती है दे परचेज एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द दैट करेंसी इंक्रीजेस दे कैन सेल सो दैट दे कैन अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट। पहले क्या स्पेकुलेशन मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, कोई भी करेंसी को परचेज करते हैं, जो फॉरेन करेंसी को, फिर जब उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाती है देन इसको सोल्ड कर देते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट है इट मेक इम्पोर्ट चीपर। अगर एप्रिसिएशन होता है तो जो इम्पोर्ट होता है वो चीपर हो जाता है, एंड आज द डोमेस्टिक कंट्री हैज टू पे लेसर प्राइस नाउ। जैसे ही क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट चीपर हो जाएगा, तो अब क्या है, कंट्री को कम पैसा देना पड़ेगा। अब कुछ भी वो गुड्स बाहर से मंगाती है तो पहले उसको 60 रुपीज़ देना पड़ा था, अब उसको 50 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। फिर टूरिज्म टू द फॉरेन कंट्री इंक्रीजेस। जो टूरिज्म है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन कंट्री का, फॉरेन कंट्री में जो जा रहा है टूरिज्म, टूर पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज करेगा एज ट्रेवलिंग अब्रॉड हैज नाउ बिकम रिलेटिवली चीपर। अब जो है बाहर जाना वो क्या हो गया है, चीपर हो गया, बिकॉज पहले हम $1 का गुड्स ले रहे थे तो 60 पे करना पड़ा था, अब $1 के लिए हमें 50 रुपीज हो रहा है। तो टूरिज्म भी क्या होगा, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा, फॉरेन कंट्री में जाना लोगों का ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड फॉल इन एक्सचेंज रेट वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब जैसे ही एक्सचेंज रेट, ये रेट क्या है, फॉल कर जाएगा, तो इससे जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो भी एनकरेज होंगे कि वो क्या करें मार्केट में, और फॉरेन कंट्री में क्या करें, जिसको हम लोग बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको भी क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है, तो राइज इन डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी के यही सारे रीजन है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज। अब जब क्या है कि ये कंडीशन तब थी कि जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी का क्या है, वो फॉल हो रहा है। प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी का फॉल हो रहा है, तब इसकी कंडीशन ये थी कि $1 60 रुपीज, $1 50 रुपीज हो रहा था, क्योंकि प्राइस फॉल कर जा रहा था। नेक्स्ट कंडीशन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज, जब फॉरेन करेंसी की प्राइस क्या हो जा रही है, राइज हो रही, दैट मीन्स $1 60 रुपीज, नाउ $1 इक्वल टू 70 रुपीज। अगर ये कंडीशन होती है दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर प्राइस फॉल करती है तो क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। अगर प्राइस क्या है, राइज कर रही है, $1 60 से $1 70 हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि राइज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी राइज इन सप्लाई, ठीक है, जब राइज इन सप्लाई होगा तो उसका मतलब क्या हो जाता है, राइज इन सप्लाई होने का मतलब है कि अब सप्लाई ज्यादा हो रही है, और जब इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो दैट मीन्स एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, सो व्हेन द राइज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी मीन्स फॉरेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज हो रहा है। अब प्राइस क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी का राइज हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज डेप्रिसिएशन। कि व्हेन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज, जब सप्लाई फॉरेन करेंसी की राइज हो रही है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी की राइज हो रही है तो वहां पे क्या चांसेस है, वहां पे क्या होगा, वहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, बिकॉज राइज इन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मीन्स होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। नाउ वी हैव टू पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पेइंग $1 इक्वल टू 60 रुपीज। अब क्या है, $1 70 रुपीज पे करना पड़ रहा है। ठीक है, सो इट मीन्स दैट $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर दी मोर रुपीज। अब क्या है कि $1 क्या ज्यादा रुपीज में एक्सचेंज हो रहा है, पहले हम 60 में ही एक्सचेंज कर रहे थे, अब हमें 70 रुपीज देना पड़ रहा है। सो सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी जब राइज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, प्राइस राइज हो रहा है ना। प्राइस राइज कब होता है, जब हम लोग ऊपर की सिचुएशन पे जा रहे थे तो वहां पे प्राइस क्या हो जा रहा था, वो राइज कर रहा था। तो दैट मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज, जैसे ही प्राइस फॉरेन करेंसी की क्या हो रही थी, वो राइज हो रही थी, तो सिचुएशन क्या हो रही थी, इट इनकरेजेस द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या हो रहा था एट दैट सिचुएशन, एक्सपोर्ट क्या हो रहा था, वो राइज हो रहा था। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे सिचुएशन थी, अब यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन हो जाता है। आज विद द सेम यूनिट ऑफ द करेंसी,
अब क्या है कि अगर प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज हो रहा है तो इट इनकरेज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को इनकरेज करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर फॉरेन करेंसी की प्राइस राइज हो रही है, अब फॉरेन कंट्री को पहले 60 रुपीज मिल रहा था, अब 70 रुपीज मिल रहा है, तो वो इससे इनकरेज होंगे, क्योंकि अब वो जो इंडिया से कुछ भी मोर गुड्स कैन बी परचेज, इंडिया से क्या है कि वो ज्यादा गुड्स को परचेज करेंगे। क्यों? पहले इंडिया से परचेज करने पर उनको 60 रुपीज मिल रहा था, अब उनको 70 रुपीज मिल रहा है। सो सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज राइजेज, जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो राइज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग टेंडेंसी, जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी है उसकी वजह से टुवर्ड्स, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेंडेंसी, इंक्रीजिंग टेंडेंसी की वजह से राइज हो जाएगा एंड मेकिंग स्पेकुलेटिव गेन्स। इससे क्या होगा कि स्पेकुलेटिव गेन्स होगा। जैसे ही स्पेकुलेशन के लिए लोग क्या करते हैं, मैंने जो बोला कि फॉरेन करेंसी को लोग परचेज करते हैं, फिर जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो देन दे सोल्ड आउट। So when the foreign currency rise, investment from the foreign country into the domestic currency rise. जैसे ही प्राइस फॉरेन करेंसी का राइज हो जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉरेन कंट्री से वो इंडिया में राइज हो जाएगा। बिकॉज अब क्या है, पहले वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा था तो 60 रुपीज, अब प्रॉफिट होगा तो उनको 10 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, 70 रुपीज मिल रहा है। सो टूरिज्म इनटू द डोमेस्टिक कंट्री राइजेस, जो टूरिज्म है डोमेस्टिक कंट्री में वो भी राइज हो जाएगा। बिकॉज अभी क्या है, क्योंकि एज ट्रेवलिंग टू द डोमेस्टिक कंट्री हैज नाउ बिकम रिलेटिवली चीपर, अब उनके लिए क्या है कि वो चीपर हो जाएगा। मतलब अगर वो 70 रुपीज का भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं सो दे हैव टू पे ओनली $1, अभी भी उनको $1 ही पे करना पड़ा है। पहले 60 रुपीज का गुड्स, फॉर एग्जाम्पल बर्गर खा रहे थे यहाँ पे, तो पहले उनको 60 रुपीज ही देके, अब मतलब अपना $1 देके या 60 रुपीज देके उनको एक बर्गर मिल रहा था। अब क्या है कि उनको सेम बर्गर 70 रुपीज का, मतलब अगर जिसमें क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें चीज लगी हुई है, अब वो वाला भी उनको 70 रुपीज का है बट उनको $1 ही देना पड़ा। तो इससे क्या होगा, चीपर हो जाएगा। एंड एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, एप्रिसिएशन क्या है फॉरेन करेंसी का, इंक्रीजेस। डायरेक्ट परचेज बाय द नॉन रेसिडेंट, जो परचेज हो रहा है नॉन रेसिडेंट्स का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल, जैसी प्राइस फॉरेन करेंसी की फॉल हो जाएगी, दैट मीन्स इट्स सप्लाई फॉल, इट्स सप्लाई, इसकी सप्लाई फॉल हो जाएगी और इसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि देयर इज एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी क्या हो जाएगा, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर जाएगी। राइट। नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, right? Okay. So it is defined as the market in which foreign currencies are bought and sold. देखिए हम लोग बात करते हैं कि मार्केट का मतलब क्या है कि कोई ऐसी एरिया, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई भी गुड्स को हम परचेज और सोल्ड करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, तो ऐसी एरिया, ऐसा प्लेस जहां पे फॉरेन करेंसीज को क्या किया जाता है, बॉट एंड सोल्ड किया जाता है, खरीदा और उसको बेचा जाता है, वो सिचुएशन। सो इट इज अ सिस्टम, ये सिस्टम वेयर द बायर एंड द सेलर ऑफ द फॉरेन करेंसी प्रोवाइड फैसिलिटीज। ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बायर एंड सेलर कोई भी फॉरेन करेंसी के प्रोवाइड फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी, जहाँ पे वो बायर और सेलर क्या कर सके, फॉरेन करेंसी को की ट्रेडिंग कर सके, मीन्स परचेज और सेल कर सके। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंस्टिट्यूट्स ब्रोकर्स, बैंक, सेंट्रल बैंक एक्सेट्रा। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन आएगा, जो ब्रोकर्स होते हैं, बैंक होंगी, यही लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज और सेल करते हैं। ठीक है। सेंट्रल बैंक मतलब हम यहाँ पे आरबीआई ले रहे हैं। ठीक है। अब इसमें आ रहा है कि फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उनका फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करते हैं, कुछ तो काम करते होंगे ना, फंक्शंस। तो फंक्शन है पहला ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में कह रहा है इट अराइजेस
व्हेन सम ट्रांजेक्शन बिटवीन दी रेसिडेंट्स ऑफ अ टू कंट्री टेक प्लेस। ठीक है, ये ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे बिटवीन दी रेसिडेंट, जो दो कंट्री के रेसिडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। इसमें क्या होता है, परचेजिंग पावर ट्रांसफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जितने भी कंट्रीज वर्ल्ड में हैं उनके बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन में कह रहा है कि लाइक डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट। कि हम लोग जैसे डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं ना, इंटरनल ट्रेड, तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे क्रेडिट पे भी हो जाता है, मीन्स अभी पेमेंट ना करके हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। तो अगर फॉरेन ट्रेड में भी करते हैं तो यहाँ पे भी फॉरेन ट्रेड में भी क्रेडिट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड फॉर क्रेडिट इन फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड का ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रेड में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वन इज हेजिंग फंक्शन, जिसको बोलते हैं हेजिंग। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। ये क्या करता है, ये जो रिस्क होते हैं कि जैसे क्या होता है कि अगर $1 इक्वल टू 60 रुपीज में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था फॉरेन ट्रेड का, बट कुछ दिन बाद जब हम लोग ने ट्रांजेक्शन किया, 1 साल बाद, जैसे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, मैं मतलब इंडिया और यूएस, तो जब रेट था तो वो $1 इक्वल टू 60 रुपीज था, बट अब वो रेट अगर 1 साल बाद $1 इक्वल टू 70 रुपीज हो गया, तो इस कंडीशन पे इंडिया के लिए तो लॉस हो जाएगा ना। तो हेजिंग क्या करता है, इस पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो भी रिस्क हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क कंसर्निंग वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उस पर ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कमिटेड एट सम कॉमनली एग्रीड रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो भी डिमांड हो रही है, जो भी सप्लाई हो रही है, वो एक कॉमन एक्सचेंज रेट पे डिटरमाइन होता है। इवन व्हेन द कमिटमेंट आर टू बी ऑनर्ड ऑन सम लेटर डेट इन फ्यूचर। भले ही जो भी हमने कमिटमेंट आज करके, बट ट्रांजेक्शन हम 1 साल बाद कर रहे हैं, 2 साल बाद कर रहे हैं, तो भी यही को फॉलो करेंगे, क्योंकि हेजिंग फंक्शन क्या होता है, यही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑपरेशन, कि फॉरेन एक्सचेंज का ऑपरेशन कैसे होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब उनका वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं। पहला होता है स्पॉट मार्केट, नेक्स्ट होता है फॉरवर्ड मार्केट। राइट, ठीक है, 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, स्पॉट मार्केट और दी फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरेन ट्रेड का, मतलब हम लोग परचेज और सेल कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी का कर रहे हैं, तो पेमेंट इज एट दैट टाइम। मतलब अगर हमारा करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है या हम गुड्स का कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी पेमेंट होगा वो उसी टाइम होगा, एट दैट टाइम, ऑन द स्पॉट होगा। बट अगर हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो इसमें जो पेमेंट होता है वो किस में होता है, फ्यूचर में होता है, अभी ना होके फ्यूचर में करते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है। अब इसमें बात आती है कि रेट क्या होता है। रेट तो हम स्पॉट में करते हैं, रेट जो होगा $1 इक्वल टू 60 या $1 इक्वल टू 70, वो हम उसी टाइम डिसाइड करेंगे, बट पेमेंट हम अभी ना करके उसको फ्यूचर में करते हैं। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है। मतलब स्पॉट मार्केट दैट मीन्स कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उसी सिचुएशन पे, उसी ऑन द टाइम होगा। कोई भी गुड्स का परचेज और सोल्ड हो रहा है तो पेमेंट हम क्या करेंगे, उसका तुरंत करेंगे, एट दैट टाइम करेंगे। सेम अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड मार्केट की, तो फॉरवर्ड मार्केट का जो भी हम रेट डिसाइड करेंगे वो ऑन द स्पॉट करेंगे, अभी रेट डिसाइड कर लेंगे, बट इसका पेमेंट हम अभी ना करके फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ऐसी ऑपरेशन होता है कि या तो पेमेंट
एट प्रेजेंट हो जाता है या इन द फ्यूचर हो गया. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज.